کیا حضرت یہاں موجود ہیں بھی یا نہیں؟ میرا نام سید محبت علی ہے، میں کوشی گٹا پر موجود ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مزار پر آ کر اگر کوئی دل میں شک کرے تو خود صاحب مزار خواب میں آ کر اپنا نام اور پتہ بتاتے ہیں؟ اور ایک ایسی کرامت جس سے 8 سال سے بے اولاد عورت کو 4 اولادیں ملی، اور ایک ایسی ماں جو بنا اولاد کے بھی ہزاروں دلوں پر ماں کے درجے پر فائز ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر کیا ہے ان کرامتوں کا راز، اور کون ہے وہ اللہ کے ولی جن کا آستانہ آج بھی مراد مندوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ضیا دینی چینل پر زیارت اولیاء اللہ کا روحانی سفر محمد احمد بیابانی کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ میں سبحان اللہ یا اللہ مدد ضرور لکھیں، اور جو نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ چلیے اب چلتے ہیں حضرت کے آستانے پر، جو تلنگانہ اسٹیٹ محبوب نگر ضلع کے ایک خوبصورت شہر جڑچرلا، جو نیشنل ہائی وے 44 پر حیدرآباد سے کرنول بنگلورو ہائی وے پر واقعی کوشی گٹا پہاڑ پر ہے، جہاں ایک مشہور و معروف ولی کامل روحانیت کے بادشاہ سلطان جڑچرلا حضرت سید محبت علی شاہ صاحب قبلہ قادری رحمت اللہ علیہ کا روضہ مبارک موجود ہے، جن کی تاریخی کرامتوں کی ایک جھلک آپ ویڈیو کی شروعات میں جان چکے ہیں۔ حضرت کی آمد اور جڑچرلا میں سکونت کے متعلق حضرت کے بزرگوں کے آستانے سے اور مقامی و درگاہ کے خادمین و متقدین کی روایتوں کے مطابق کچھ اس طرح ہے۔ محبت محبت علی، 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 محبت محبت علی۔ دوستوں، یہ واقعہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کا ہے۔ اس دور میں پولے پلے نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، جو کوئل کنڈا کے اندر قطب شاہی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ اس وقت نہ بادے پلی تھا، نہ جڑچرلا تھا، اور نہ کورم پیٹ کا کوئی وجود تھا۔ چاروں طرف گھنے جنگلات، اونچی اونچی پہاڑیاں، ویران اور خوفناک علاقے پھیلے ہوئے تھے۔ کوئل کنڈا اور گھنپورا سے گولکنڈا کی طرف جانے کے لیے گھوڑا گاڑیاں اور بیل گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا راستہ ہوا کرتا تھا، جو اسی پولے پلی سے گزرتا تھا۔ آس پاس چھوٹے موٹے کچھ کچے مکان تھے، کوئی بڑی آبادی یا منظم بستی نہیں تھی۔ ایسے دور میں شہر بغداد شریف سے ایک نورانی قافلہ ہندوستان کی زمین بارہ بنکی آ پہنچا، جہاں حضرت سید شاہ عیسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے پائے کے ولی موجود تھے۔ ان کی خدمت میں حضرت سید فخر اللہ شاہ ہادی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک قافلے کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد سلسلہ قادریہ میں بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے، اور اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے اپنے ساتھ موجود چند مریدین کی ٹولی لے کر وہاں سے ہجرت فرماتے ہوئے شہر در شہر سلسلہ قادریہ کی تعلیمات اور دین حق کا پیغام پھیلاتے ہوئے حیدرآباد دکن کے پہاڑی شریف پہنچے، جہاں حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا نورانی آستانہ ہے۔ وہاں کچھ دن قیام کے بعد یہ قافلہ جڑچرلا کی اس سرزمین پر تشریف لایا۔ یہاں آتے ہی پیر و مرشد نے اپنے مرید خاص مرد غازی صوفی باصفا کو کوشی گٹا پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بیٹا علی، آج سے اس جگہ کی رہبری اور ولایت تمہارے حوالے ہے، تم یہیں رکو۔ اتنا کہہ کر انہیں ولایت کا تاج پہنا دیا، اور خود اپنے حقیقی مقام توگور سمستان، جو آج وناپرتی ضلع پیبیر منڈل کے توگور ولیج میں ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔
दोस्तों, हजरत पीरो मुर्शिद सैयद फखरुल्लाह शाह हादी क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के खुतब और बड़े पाए के बुजुर्गों में शुमार होते हैं, जो महबूबनगर जिला में उस दौर में तशरीफ लाने वाले अकाबिर औलिया में शामिल हैं। उनकी मुकम्मल करामती हयात की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुबूर वनपर्ती दरगाह हिस्ट्री के नाम से मौजूद है, आप देख सकते हैं। हजरत पीरो मुर्शिद की ताकीद पर कोशीगुट्टा की इस पहाड़ी पर क़ियाम फरमाने वाले हजरत सैयद मोहब्बत अली शाह साहिब क़िबला क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो रूहानियत के बादशाह और मोहब्बत के पैकर थे, आपने ऐसे खौफनाक वीराने में अपनी इबादतों और रियाजतों से नूर की बरसात की है। आपके कदम मुबारक की बरकत से लोग यहाँ आने जाने लगे और जिन लोगों को हजरत से दिली लगाव था, उन्हीं के बसने से धीरे धीरे यहाँ आबादी फैलने लगी। आपकी तालीमात, हिकमत अमली और सुलूक व अदब के लोग गिरविदा होने लगे। आपकी पहली करामतों में एक बकरियों के झुंड के गायब होने का वाक़या मिलता है, जहाँ चरवाहे ने खोई हुई बकरियां हजरत की दुआ से बफज़ल ताला वापस मिल जाती हैं। इस करामत के बाद आपके चर्चे चारों तरफ फैलने लगे। है नाम कितना प्यारा मोहब्बत अली का, रुतबा है बड़ा निराला मोहब्बत अली का। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहब्बत की मोहब्बत, दो जहां में है चर्चा मोहब्बत अली का। दिलों के अंधेरे उजालों में बदले। फिर कुछ अरसे बाद कायापल्ली संस्थान वजूद में आया। वहां की राजकुमारी रानी कावेरम्मा को हजरत के आस्थाने से बेहद दिली लगाव और अकीदत थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अक्सर हजरत के दरबार में आकर औलाद के लिए मिन्नतें करती थी। उनकी इस सच्ची खिदमत और बेचैनी को देखकर एक दिन हजरत ने उनसे पूछा, कावेरम्मा, तू औलाद के लिए इतनी बेचैन क्यों होती है? तो उन्होंने आजिज़ी से अर्ज किया, हजरत, मुझे मेरे खानदान की बढ़ोतरी और मेरे नाम से नस्लों की तरक्की की तमन्ना है। जब हजरत ने उनकी ये बात सुनी तो आपने मेहरबानी फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बेशक तेरा नाम तारीख में हमेशा के लिए कायम रहेगा। हम वहाँ बसने वालों के दिलों में तेरी ममता की ऐसी दुआ देते हैं कि वो तुझे सदा अपनी सच्ची माँ का दर्जा देंगे। सुभान अल्लाह। बस हजरत के जुबान मुबारक से इन कलिमात का निकलना था कि हजरत के आस्थाने से कुछ दूरी पर कावेरम्मा पेटा के नाम से एक बस्ती वजूद में आई, जो आगे चलकर बादेपल्ली और आज के शानदार जड़चरला में मिलकर हमारे सामने मौजूद है। बिना औलाद के भी हजरत की दुआ की बरकत से आज सदियों बाद भी लोग रानी कावेरम्मा को अपनी माँ का दर्जा देकर दिलों में बसाए हुए हैं। दोस्तों, हजरत की हयात व पर्दा फरमाने के मुतालिक तारीखी मालूमात में उलझन की वजह से हम आपके आस्थाने पर बाद वफात की करामतों का जिक्र कर रहे हैं। आपके पर्दा फरमाने के बाद कोशीगुट्टा पहाड़ पर आपका ये मुक़द्दस मज़ार मरजाए खलाइक बन गया है। हजरत के आस्थाने पर आज भी ऐसे ऐसे मौजिज़े देखने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर आशिकों के दिल झूम उठते हैं। मकामी लोग और अकीदतमंद बताते हैं कि अगर कोई शख्स दिल में कोई शक या गुमान लेकर आए और कहे कि क्या ये साहिब मज़ार यहाँ मौजूद हैं, तो उसी रात ख्वाब में उन्हें ऐसा नूरानी नज़ारा दिखाई देता है कि खुद हजरत उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि मेरा नाम मोहब्बत अली शाह क़ादरी है और मैं यहाँ कोशीगुट्टा पहाड़ी पर मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए, ऐसे कई जिंदा मौजिज़े यहाँ सुनने को मिलते हैं, जिसकी गवाही खुद पर बीती बताने वाले लोग यहाँ आज भी मिलते हैं। आस्थाने की हाल ही की एक और जिंदा करामत सुनिए। एक नौजवान ने अपने इम्तिहान में अच्छे मार्क से कामयाबी के लिए हजरत के मज़ार पर आकर मन्नत मांगी कि अगर वो अच्छे नंबरों से पास हो गया
तो वो घुटनों के बल आस्ताने की सीढ़ियां चढ़ेगा। अल्लाह के फजल और वली के वसीले से उसकी मन्नत मकबूल हो गई। फिर क्या था, उस नौजवान ने पूरे अकीदे के साथ एक या दो नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक पूरे 90 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर हजरत की जियारत की और अपनी मन्नत अदा किया। या मोहब्बत अली शाह बाबा, मैं कामयाब हो गया। जहां पैरों से चढ़ना मुश्किल होता है, वहां घुटनों के बल जाना औलिया से सच्ची मोहब्बत की जिंदा मिसाल है। इसी तरह महबूब नगर के एक और नौजवान को आर्मी में भर्ती होने की बहुत ख्वाहिश थी। उसने हजरत के वसीले से दुआ की और मन्नत मांगी कि अगर नौकरी मिल जाए तो वो अपने घर से आस्ताने तक नंगे पैर पैदल चल के आएगा। अल्लाह ने हजरत के तुफैल में उसकी लाज रख ली और उसकी दुआ कबूल हो गई। इसके बाद उस नौजवान ने अपने घर से आस्ताने तक तकरीबन 18 किलोमीटर से जायद नंगे पैर पैदल चल के कोशीगुट्टा पहाड़ पर खुशी खुशी मन्नत अदा करने के लिए हाजिर हुआ। हर जुमेरात और जुमा को परेशान हाल और जियारत करने वालों की यहाँ ऐसी ही भीड़ नजर आती है। नाजरीन, कौरमपेट की एक माँ की सच्ची कहानी उनके ही बेटे के कलम से लिखी हुई किताब तोहफतुल मन्नान के जरिए सामने आई है। शादी के 8 साल गुजर जाने के बाद भी जब कोई औलाद नहीं हुई तो थक हार कर उस बेटी ने हजरत सैयद मोहब्बत अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आकर रो रो कर मिन्नतें मांगी। हर जुमेरात आस्ताने पर हाजिरी देना उनका मामूल बन गया। माँ साहिबा खुद बताती हैं कि हर जुमेरात उन्हें ख्वाब में हजरत के दीदार होते और हजरत उनके दामन में एक एक अदद लहसुन की कली डालते थे। इस तरह 4 जुमेरात में 4 कलियां डाली गईं। 5वीं जुमेरात जब पूरी होते ही अल्लाह के फजल से वो हामिला हुई हैं और अल्लाह ने उन्हें 4 औलाद से नवाजा। उनकी पहली औलाद का नाम हजरत के नाम पर मोहब्बत अली रखा गया। यही बच्चा आगे चलकर उर्दू के एक मशहूर शायर, उर्दू पंडित, गवर्नमेंट टीचर और राइटर बने, जिन्हें दुनिया आली जनाब मोहब्बत अली मन्नान साहब के नाम से जानती है। आपने अपनी किताब तोहफतुल मन्नान में इस पूरे वाक़ये को दर्ज किया है। आज 75 साल की उम्र में आप जड़चरला में बहयात हैं। उन्हीं से मुलाकात के दौरान ये वाक़या हम तक पहुंचा। इस सच्चाई को सामने लाने और इसे बयान करने की इजाज़त देने के लिए जिया दीनी चैनल की तरफ से मोहतरम मन्नान साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआगू हैं। नाजरीन, इस सच्चे वाक़ये से ये साबित होता है कि अल्लाह वालों के दरबार से आज भी उनका वसीला लेकर अल्लाह से मदद मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। मोहतरम मन्नान साहब बताते हैं कि हजरत ने कई बार ख्वाब में घोड़े और शेर की सवारी पर हजरत ने दीदार अता किया और मुश्किलात से महफूज रखा और उनकी दुआओं और नजर करम से पूरा जड़चरला और ज़ायरीन फैज़ पा रहे हैं और दुआ है कि ता क़यामत हजरत के आस्ताने से ये फैज़ जारी रहे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे जानिब से दुआ है कि परवरदिगार आलम हजरत सैयद मोहब्बत अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तुफैल और वसीले से हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, बीमारियों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को नेक और साली औलाद अता फरमाए और हम सभी के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझकीर बंदे की जो भी शानो शौकत है, जो भी शानो शौकत है, मोहब्बत अली का करम है, ये मोहब्बत अली की इनायत है। मेरे मोहब्बत अली, मोहब्बत अली का करम है। दोस्तों, और हर साल मुहर्रम के महीने में संदल और उर्स शरीफ बड़े धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया जाता है। एक छोटी सी इतला देता चलूं कि तेलंगाना में ऐसे कई मुकाम हैं
जहां औलिया अल्लाह के आस्थाने मौजूद हैं, लेकिन लोग उनकी अजमत से अनजान हैं। इस नीयत से मैं मोहम्मद अहमद बियाबानी अपना ये ज़िया दीनी चैनल यूट्यूब और फेसबुक पे औलिया की दास्तान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मुक़द्दस आस्थाना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और रूहानी सफ़र में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फी अमान। अस्सलाम ए रहबारे राहे हकीकत, अस्सलाम ए वली मुहतरम शाहे मुहब्बत, अस्सलाम हादिये नहज तरीक़त मारिफत के रहनमा, आप पर है मुनकशिफ राज़े हक़ी। लोग हर मज़हब के आकर फैज़ पाते हैं यहाँ, हर किसी को आपने पहुँची राहत, अस्सलाम है अली मन्नान भी दरबर का अदना फ़कीर, है तमन्ना देखने की हो बसारत। फ़क़रुल्लाह के प्यारे मेरा सलाम ले लो, मोहब्बत अली हमारे मेरा सलाम ले लो। जड़ चरला की ज़मीं पर रहमत बन के आए, दुखियों की झोली भरने आका हमारे आए। अहमद खड़ा है कब से दर पर तुम्हारे, हजरत कर दो चश्मे रहमत मेरा सलाम ले लो। मुश्किल कुशा हमारे मेरा सलाम ले लो, मोहब्बत अली हमारे मेरा सलाम ले।